Okay. Good evening, everyone. So, dear students, getting late due to some technical issues, non-availability of data pack and other. So, we will continue with the structure of glucose. We had seen optical isomerism in glucose, optical isomerism, and that optical isomerism we had seen if it is dextro-rotatory, dextro, that is rotation of plane of rotation of plane polarized light on right hand side is what we call as D isomer, denoted by plus sign also. So D isomer, dextrorotatory D isomer, and we can have D glucose, D fructose, and like that. Similarly, we have levo, that is rotation of plane polarized light on left hand side, denoted by L or minus sign, we call as L isomer and D isomer. Whereas the term D and L, capital D and capital L, conformation system. Now we'll see this after optical isomerism. इसमें स्मॉल d और स्मॉल l यूज होता है, कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे होता है ये देखेंगे. DL configuration system. What this system suggests that the very first member of monosaccharide is glyceraldehyde. We had seen glyceraldehyde C3H6O3, glyceraldehyde. We call it as triosis, aldotriosis and ketotriosis. So this we take triosis, aldotriosis, and the example is glyceraldehyde. Correct, glyceraldehyde. अब इसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. Glyceraldehyde is having 3 carbon and the carbon number 2 is a asymmetric carbon, and to this asymmetric carbon number 2 is asymmetric carbon, star mark दे देते. If OH group is on the right hand side, it is termed as D glyceraldehyde. The lower carbon, the lowest asymmetric carbon of chiral carbon. Asymmetric तो आप यूज नहीं करते, we use chiral carbon atom. If the lowest chiral carbon is having OH group on right hand side, then it is termed as D isomer. And if the chiral carbon lowest again है ना, lowest ही है इसमें, this is the second carbon, once again glyceraldehyde, OH group is on the left hand side, we term this as L or negative glyceraldehyde. This L and D are in capital form. Okay, so बहुत इजी है समझने के लिए. जैसे एक हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, और we take C5H12O5, C5H10O5 है ना. तो ये एल्डोपेंटोसिस and it is ribose. इसमें DL कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं कैसे होगा. अब ये DL को समझने के लिए glyceraldehyde is considered as the basis for deciding D and L isomers. Capital D, capital L configuration में glyceraldehyde को एक स्टैंडर्ड माना. किसी को एक को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड को फिर बाकी इसमें अप्लाई करते जाएंगे. तो इसमें स्टैंडर्ड में 2 ऑब्जर्वेशन आए कि जो लोएस्ट
कायरल कार्बन है उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में रहेगा तो वो डी आइसोमर बनेगा, और लोएस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो L आइसोमर बनेगा। सही है। तो अब ये राइबोस जो कि 5 कार्बन वाला है इसमें अप्लाई करते हैं हम। देखिए 3, 4 एंड 5। सही है। तो फर्स्ट वाला अल्डिहाइड तो रहने ही वाला है। अब कैसा लिखते हैं इसको, हाउ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये ऐसा हो गया, और ये लास्ट कार्बन CH2OH। टोटल बेटा कितने होना 5, तो 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन 1 2 3 4 5 नंबर कर दो। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। लोएस्ट chiral carbon is at the 4th place। अब इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा ट्रीट करो, है ना, ये वाला पोर्शन इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा ट्रीट करो। अब जैसा ग्लिसरॉल, यहां भी एक और स्ट्रक्चर बना लेते, ये CHO CH2OH and remaining 3 carbon, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिमेट्रिक आ गया फोर्थ। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ये लोएस्ट कार्बन जो है कायरल है ना, लोएस्ट कार्बन इट हैज टू बी अ कायरल कार्बन। ये देखिए ये आ गया, दिख रहा है सभी को। तो ये फोर्थ कार्बन है बेटा, यहाँ पर कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4, और ये हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसे इसको सिंगल आउट कर लिया, यहाँ से सिंगल आउट किया। अब इसको सिंगल आउट कर लिया तो जो रूल ग्लिसरॉल्डिहाइड में लगाया वही अप्लाई कर दो। लोएस्ट कायरल कार्बन OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये D और D आइसोमर बना, D राइबोस। OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये L आइसोमर बना राइबोस का, राइबोस का L आइसोमर, राइबोस का D आइसोमर। तो DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए, DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट क्या है कि जो लोएस्ट कायरल कार्बन है आप पहले उसको सिलेक्ट करो, और लोएस्ट कायरल कार्बन में OH राइट साइड में रहेगा तो वो D आइसोमर बनेगा, OH लेफ्ट साइड में रहेगा तो L आइसोमर बनेगा। दैट इज DL configuration for monosaccharides। Okay, DL configuration। So this part is over, DL configuration। आप कोई भी एग्जांपल लो और उसमें अप्लाई करो। अब हमने राइबोस C5H10O5 ले लिया, अब इसी को ग्लूकोज में ले लो, है ना। तो डी ग्लूकोज अगर अपने को बनाना है कैपिटल D, तो डी ग्लूकोज देखते हैं कैसे मिलेगा। डी ग्लूकोज है ना, फॉर्मूला तो C6H12O6 एज यूजुअल। एंड चलिए फिर अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड, लास्ट कार्बन प्राइमरी अल्कोहल, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब डी ग्लूकोज बनाना है तो क्या करेंगे, अब हम डी ग्लूकोज बनाना है तो क्या करेंगे, लास्ट कायरल कार्बन, कायरल कार्बन 2 3 4 एंड 5 आर द कायरल कार्बन। तो इसमें लोएस्ट कायरल कार्बन, लोएस्ट कायरल कार्बन को ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा ट्रीट कर लेंगे। अब यहाँ पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में आ गया तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया डी ग्लूकोज। अब इसी को अगर L करना है तो क्या करेंगे, OH को लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में,
आपका L ग्लूकोज होगा, लेकिन ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है डी आइसोमेरिक फॉर्म में, इसीलिए हमने यहाँ पर ये डी ले लिया, डी ग्लूकोज एज एन एग्जाम्पल। तो मिला आपको डी ग्लूकोज कैसे डिसाइड करना है, टेकिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। आपने राइबोज में देख लिया, आपने इसको ग्लूकोज में भी कंसिडर किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है, ये इसे क्या कहते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एंड this is what we call as Fisher projection formula or Fisher projection representation, है ना, Fisher's projection, open structure। अब क्या हो गया कि this open structure does not explain all the properties, does not explain many of the properties of glucose. So it is thought that this structure is not the final structure of glucose. There must be some closed chain structure or ring structure of glucose is possible. And to get this ring structure of glucose, क्या किया गया कि ग्लूकोज को डी एंड एल दो स्ट्रक्चर बना लिए, है ना। तो हम लेते हैं पहले एक नॉर्मल ओपन चेन ग्लूकोज और उसमें देखते हैं फिर कैसे हमें रिंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो ये ग्लूकोज आ गया एंड वी विल पुट CH2OH here, we'll make open 1 2 3 and 4, and like that we will make ये ओपन स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन, ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग पहले ड्रॉ तो कर लेते हैं, देन वी विल मेक द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट। CH2OH 1 2 3 and 4, CH2OH 1 2 3 and 4। अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH एंड OH, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिला ग्लूकोज का। एंड रेस्ट ऑफ द वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है, देखिए ये अल्डिहाइड का ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन इस तरफ में है, एंड इट हैज फर्स्ट हाइड्रोक्सी, सेकेंड हाइड्रोक्सी, थर्ड हाइड्रोक्सी एंड द फोर्थ हाइड्रोक्सी। अब जो लोएस्ट कायरल कार्बन नंबर 5, लोएस्ट कायरल कार्बन और फर्स्ट यहाँ पर, अब अल्डिहाइड में दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या देखा गया कि अल्डिहाइड का ऑक्सीजन और फिफ्थ का यहाँ का OH ग्रुप, दे फॉर्म अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दे फॉर्म अ लिंकेज बिटवीन देम and create a structure, a ring structure for glucose। अब यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर बना ग्लूकोज का, तो ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, पॉजिटिव साइन भी रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और नेक्स्ट वाले में अब क्या करते हैं, OH ग्रुप, इसमें भी एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो यहाँ कैसे होगा, फिर से वैसा ही होगा कि अल्डिहाइड का ऑक्सीजन and hydrogen from here, they will join together and form a cyclic structure between them, C1 and C5. C1 C5, here also C1 C5. तो C1 C5 is having a oxygen linkage, तो ये C1 C5। अब क्या डिफरेंस दिख रहा है अल्फा और बीटा में, आप ऑब्जर्व करेंगे ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये अल्फा और बीटा ये क्या टर्म आ गई है, अल्फा कब बोलेंगे, अल्फा कब बोलेंगे इसको, ring closure, the two ring structure are called alpha and beta anomers of glucose. C1 is called anomeric carbon. This carbon is known as anomeric carbon, anomeric carbon. Here this is also called as anomeric carbon, anomeric carbon C1। बोल कैसे बना है, how many alcoholic group, 1 2 3 4, 1 2 3 आ रहे हैं, 4 चाहिए ना, तो थोड़ा सा वेरिएशन है स्ट्रक्चर में। तो HOH HOH OH and here is OH, and from here this will be the anomeric group, this is anomeric group। तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, fourth, fifth and the sixth carbon. Likewise here also we will get C5H, then OH on the right hand side, OHH, HOH, and C1 में OH group left hand side में H। तो ये इस तरह से एनोमेरिक कार्बन, तो C1 C2 C3 C4 C5 and C6। so like this we get here C4 C1 C2 C3 C4 and C5, alternate। तो this is what we call as D glucose प्लस डी ग्लूकोज। क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ था, राइट हैंड साइड में, यहाँ भी OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, and that has been used to create a bond here। okay, so this is alpha D glucose and beta D glucose। the two ring structure are called alpha and beta anomers of glucose। तो C1 is anomeric carbon, and here the anomeric carbon, अब एनोमेरिक कार्बन में OH अगर राइट साइड में रहेगा तो वो अल्फा होगा, OH अगर लेफ्ट में रहेगा तो वो बीटा हो जाएगा, दैट इज व्हाट। तो आइडेंटिफाई द एनोमेरिक कार्बन, which is used to create
a cyclic structure here and cyclic structure here. So first carbon is the anomeric carbon, and to this OH group on the right hand side alpha D glucose, and OH group on left hand side beta D glucose. It is a, now this is a 6-membered or 5-membered ring. ये जो ring बना आपका, this is a 6-membered ring. It is a 6-membered ring. जरा देख लेंगे कौन से 6 मेंबर इसमें आ रहे हैं. ये 5 तो कार्बन है और ये 6 वाला ऑक्सीजन हो गया. तो ये 6-membered रिंग यानी कुछ इस तरह से बनेगा. 6-membered रिंग, और जो 6th है ये रिंग में है ऑक्सीजन. तो ये बना 6-membered रिंग where oxygen is present in the ring. और ये C1, C2, C3, C4, C5 ये स्ट्रक्चर बना. Likewise here also this is also a 6-membered ring. 6-membered ring having 6-membered ring. It is a heterocyclic ring. Heterocyclic means along with carbon oxygen is present in the ring. We call it as heterocyclic ring, and the name of this is pyrene ring. So this is a heterocyclic pyrene ring, and the glucose structure is known as glucopyranose structure. So this 6-membered structure of glucose is alpha, where anomeric carbon is having OH group on the right hand side, and beta anomeric carbon is having OH group on the left hand side. It's a 6-membered ring where 6-membered heterocyclic ring similar to that of pyrene, and the glucose will be named as glucopyranose structure. So in the next article we will see this ring structure of glucose where carbon number 1 and carbon number 5 create a ring structure. Okay. So we will continue this part tomorrow. Okay, we are running short of time, so we will continue ring structure Haworth formula tomorrow.